کیا آپ جانتے ہیں عرب کی تاریخ کا سب سے طاقتور اور معزز قبیلہ کون سا تھا؟ ہم سب سے طاقتور اور معزز قبیلہ، ہماری طاقت ہمارا اتحاد ہے۔ وہ قبیلہ جس کے بغیر مکہ کی تجارت ناممکن تھی، جس کے ہاتھوں میں کعبہ کی چابیاں تھیں اور جس کی عزت پورے عرب میں مانی جاتی تھی۔ ہم قریش کے سردار، اللہ کے گھر کے امین ہیں، حجت سپارے ہیں۔ یہ تھا قبیلہ قریش، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ قبیلہ اتنا ممتاز کیوں تھا؟ ان کی طاقت کا راز کیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، جب اسلام کی صدا بلند ہوئی تو اسی قبیلے نے سب سے پہلے مخالفت کی، پھر اسی قبیلے نے اسلام کو گلے لگایا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم قبیلہ قریش کی پوری کہانی جانیں گے، شروع سے لے کر آخر تک۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قریش ہیں کون۔ تاریخی کتب اور انساب کے ماہرین کے مطابق قبیلہ قریش کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یہ وہی خاندان ہے جسے اللہ نے حرم مکہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ قریش کے بانی کا نام قصی بن کلاب تھا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ہمیں اتحاد چاہیے، اختلافات ختم کرو۔ قصی بن کلاب سے پہلے مکہ کی حالت کچھ اور تھی، لیکن قصی نے اپنی دانشمندی سے قریش کو ایک منظم طاقت بنایا۔ اس نے مختلف شاخوں کو اکٹھا کیا، انہیں مکہ میں آباد کیا اور کعبہ کی خدمت کے نظام کو ترتیب دیا۔ قریش کا لفظ کیوں پڑا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بہت تیز رفتار تھے، اس لیے انہیں قریش کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عرب کے سردار تھے اور ہر اچھی چیز کو توڑ کر اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ یا سنان، قبیلہ بنو تمیم کا تحفہ قبول فرمائیں، ہم اس قبیلہ بنو نصر کی طرف سے تھے، یہ نظر شکر ہے۔ یا بزرگ قریش، ہم قبیلہ حوازن کا تحفہ شکر ہوا یہ خدا سے، سب کا شکریہ، اتحاد ہماری طاقت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ایک خاص مقام دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اہلا وسہلا۔ یہ شرف کسی اور قبیلے کو حاصل نہ تھا۔ قصی بن کلاب کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے ذمہ داریاں بانٹ لی۔ قریش کے سرداروں، ہاں ہم ایک طاقتور اتحاد بنائیں گے، تو پھر فیصلہ متفقہ ہے۔ ہاں متفقہ ہے۔ کچھ کو کعبہ کی چابی ملی، کچھ کو حاجیوں کی پانی پلانے کی ذمہ داری، اور کچھ کو دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس چلانے کا اختیار ملا۔ یہ نظام اتنا مضبوط تھا کہ صدیوں تک چلتا رہا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قریش اتنے طاقتور کیسے ہوئے۔ صرف نسب کافی نہیں ہوتا، طاقت کے لیے معاشی مضبوطی ضروری ہے۔ یہ بہت اچھا کپڑا ہے، لے لو۔ 2 تولہ لال مرچ دیں۔ بہت اچھا، یہ لے۔ قریش نے عرب کے تجارتی نقشے کو ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں انہی کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ قریش کے قافلے سال میں 2 بار نکلتے تھے۔ سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے جہاں سے خوشبوئی مصالحے اور کپڑا ملتا تھا۔ گرمیوں میں یہ شام یعنی سوریہ کی طرف جاتے تھے جہاں سے اناج اور دیگر سامان ملتا تھا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، ہزاروں اونٹوں کے قافلے ہوتے تھے، پورا عرب ان کے راستے میں رکاوٹ بننے سے ڈرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قریش کو حرم کا احترام حاصل تھا۔ اگر کوئی دوسرا قبیلہ سفر کرتا تھا تو اسے چور ڈاکو لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ سلامتی سے گزرتا تھا۔ اس تجارت نے انہیں بہت امیر کر دیا۔ مکہ کے بازار گرم ہو گئے، اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز جیسے مشہور بازار لگتے تھے۔ الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل۔ سیاسی طور پر بھی قریش کا نظام منفرد تھا۔ دار الندوہ ان کا مرکزی دفتر تھا، یہاں تمام اہم فیصلے ہوتے تھے۔ یہ نقشہ ہماری سرحدوں کی اہم ہے۔
जी हाँ, हमें इस पर गौर करना होगा, बिल्कुल संजीदगी से। जंग हो या सिलाह, तिजारती मुआहिदा हो या किसी कबीले से ताल्लुकात, सब कुछ यहीं तय पाता था। कुरैश के सरदारों में वलीद बिन मुगैरा, अबू जहल, अबू सुफियान जैसे लोग शामिल थे। ये लोग न सिर्फ अमीर थे बल्कि बहुत ज़हीन और सियासी बसीरत रखने वाले थे। उन्हें मालूम था कि ताकत कैसे बरकरार रखी जाती है। इसीलिए जब इस्लाम आया तो उन्हें सबसे पहले यही खतरा हुआ कि कहीं ये नया दीन उनकी सियासी ताकत को तो नहीं खत्म कर देगा। ये खबरों से लगता है कि वक्त आ गया है। जी हाँ, लेकिन तैयारियों का जायजा अदा कर दें, दुश्मन करीब है। हाँ, लेकिन चुपके से। अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसने तारीख का रुख बदल दिया। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आपने इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के रद्द अमल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शुरू में दावत छुप कर दी गई, लेकिन जब ऐलान आम हुआ तो कुरैश के सरदारों के कानों में जैसे बिजली गिरी। ये नबी का आना हमारे लिए खतरा है। हाँ, इसकी आमद हमारी रवायात को देखो, हैरान और खौफनाक। उन्होंने सोचा कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा चल गया तो हमारे बुतों का क्या होगा, हमारी सरदारी का क्या होगा। ये बुत हमारे बुजुर्गों की मीरात है, लेकिन लोग उन्हें छोड़ डरते हैं सरदार। हाँ, यही तो फिक्र की बात है। हम जो लोगों को हज के बहाने टैक्स लगाते हैं, इसका क्या होगा। यही वजह थी कि मुखालफत इंतहाई सख्त हुई। शुरू में मजाक उड़ाया गया, नाउजुबिल्लाह कहा गया कि ये कोहन है, ये मजनून है। लेकिन जब लोग इस्लाम लाने लगे तो तशद्दुद शुरू हो गया। हम सब्र करेंगे। हजरत बिलाल हबशी को गरम रेत पर लेटाया गया। हजरत समैया को नेज़े से शहीद किया गया। ये सब कुरैश के ही लोग कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मुखालफत के बावजूद इस्लाम क्यों नहीं रुक सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि सच्चाई के पांव नहीं होते। कुरैश ने महसूस किया कि सिर्फ तशद्दुद से काम नहीं चलता। दोबारा इजलास शुरू करें। क्या खतरा बढ़ गया है? हाँ, मुशावरत जरूरी है, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सौदा किया जाए। वो आपके पास आए और कहने लगे कि अगर आपको माल चाहिए तो हम आपको अपना सबसे अमीर आदमी बना देंगे। अगर बादशाह चाहिए तो हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं। अगर शादी करनी है तो हमारी सबसे खूबसूरत लड़की से निकाह कर दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया। आपने फरमाया, अगर तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख दो तब भी मैं इस दावत से बाज नहीं आऊंगा। जब सौदेबाजी नाकाम हुई तो कुरैश ने इज्तिमाई फैसला किया। उन्होंने बनु हाशिम और बनु मुतलब का इज्तिमाई बाइकाट कर दिया। अब हम उनका इज्तिमाई बाइकाट करेंगे ताकि ये भूख से खुद ब खुद खत्म हो जाए। शाबे अबी तालिब में मुसलमानों को 3 साल तक कैद कर दिया गया। ना कोई कुछ खरीदता था, ना कोई बेचता था, ना कोई शादी करता था। बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं। भूख से लोग पत्ते खा रहे थे। सब्र करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये बच्चे मेरे को छीन रहे हैं। लेकिन इस इम्तिहान में भी इस छोटे से गिरोह ने सब्र नहीं तोड़ा। ये वो मुकाम था जहां कुरैश की जालिमाना ताकत और मुसलमानों के ईमान की टक्कर हुई और तारीख गवाह है कि ईमान जीत गया। तीन साल के बाइकाट के बाद जब अबू तालिब और हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया तो कुरैश की अजियतें बढ़ गईं। अल्लाह ने अपने नबी को हिजरत का हुक्म दिया। मदीने का सफर हुआ, लेकिन कुरैश यहाँ भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए जंगें की। मस्जिद नबवी की तामीर तेज रफ्तारी से जारी है, लेकिन कुरैश के जासूस हम पर नजर रखे हुए हैं। ये तारीखी नक्शा 3 कदीम जंगों के अहम मकामात और लश्करों की नक्लो हरकत को दिखाता है। बदर, ओहद, खंदक
ये 3 बड़ी जंगें हैं जिनमें कुरैश के सरदार मैदान में उतरे। ग़ज़वा बदर में कुरैश का वो जर्नल जो कभी नहीं हारा था वो शिकस्त खा गया। अबू जहल जैसा दुश्मन मारा गया। ये कुरैश के लिए एक बड़ा सदमा था। उन्हें लगा था कि हम मक्का के अमीर लोग हैं, क्या हम भी कभी हार सकते हैं? लेकिन ओहद में जब मुसलमानों से गलती हुई तो कुरैश को मौका मिल गया और उन्होंने पलटकर वार किया। लेकिन खंदक में जब पूरा अरब इकट्ठा हुआ तो अल्लाह ने हवाओं और फरिश्तों से मदद की और कुरैश का इत्तेहाद टूट गया। कुरैश ये साबित करना चाहता था कि हमारी रिवायत ही सही है, जबकि इस्लाम ये कह रहा था कि सच्चाई सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी में है। हर जंग के बाद कुरैश की ताकत कम होती गई और इस्लाम का वकार बढ़ता गया। हत्ता कि कुरैश के बहुत से बहादुर लोग जो कभी इस्लाम के दुश्मन थे वो आहिस्ता आहिस्ता हक की तरफ माइल होने लगे। खालिद बिन वलीद जैसा सैफुल्लाह जो कुरैश का बेहतरीन सिपा सलार था वो इस्लाम लेकर मुसलमानों की तलवार बन गया। अब हम इस मकाम पर पहुंचते हैं जो कबीला कुरैश की तारीख का सबसे सुनहरा बाब है। 8 हिजरी का साल था। मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी थी और कुरैश ने हुदैबिया के मुआहदे को तोड़ दिया था। अब वक्त था कि मक्का फतह हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़े। कुरैश के सरदार घबराए हुए थे। उन्हें यकीन था कि आज इनका इंतकाम लिया जाएगा, खून बहेगा, औरतें और बच्चे कैदी बनेंगे। यही रवाज था उस जमाने में। लेकिन जब फतह मक्का हुई तो मंजर कुछ और था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास तशरीफ लाए। मैं डरा हुआ था, लेकिन अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये जंग का रवाज है, जीतने वाला हमेशा इंतकाम लेता है। हमारी बारी है। कुरैश के सरदार जिन्होंने आपको सताया था, जिन्होंने आपके रिश्तेदारों को मारा था, वो सर झुकाए खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आज तुम्हारे बारे में क्या फैसला होना चाहिए। अबू सुफियान जैसा बड़ा दुश्मन वहीं मौजूद था। इसने उम्मीद से कहा कि आप बेहतरीन भाई और बेहतरीन भतीजे हैं। उसके बाद वो अल्फाज आए जो तारीख में कभी नहीं बोले गए। आपने फरमाया कि आज तुम पर कोई मुलामत नहीं। क्या हम माफ हो गए? हमें सजा नहीं मिलेगी? ये इस्लाम का वो करिश्मा था जिसने दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। फतह मक्का के बाद तकरीबन पूरा कबीला कुरैश इस्लाम के दायरे में आ गया। क्या हमें सजा नहीं मिलेगी? हम माफ हो गए, हमें माफ कर दिया। इस लम्हे कुरैश के दिलों में जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई। जो लोग कल तक जान के दुश्मन थे वो आज जान नसार बन गए। फतह मक्का के बाद कबीला कुरैश की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए बाब का आगाज हुआ। अब ये कबीला इस्लाम का सिपह सलार बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमामत कुरैश में ही रहेगी। ये पेशिनगोई पूरी हुई। आपके बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु थे जो कुरैशी थे। दूसरे हजरत उमर फारूक। उसके बाद बनु उमैया की हुकूमत कायम हुई जो पूरी कुरैश की शाख थी। फिर बनु अब्बास आए। सदियों तक इस्लामी सल्तनत की बागडोर कुरैश के हाथों में रही। उन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर फारिस, रूम, अफ्रीका और हिंदुस्तान तक पहुंचाया। कुरैश के वो लोग जो कभी बोतों के पुजारी थे, अब वही लोग मस्जिद अक्सा और काबा के खादिम बने। उन्होंने इल्म, फिक़ह, हदीस और तफसीर में ऐसी खिदमात अंजाम दें कि आज तक दुनिया उनकी मरहून मिन्नत है। الإيمان يبدأ بالعلم كما في هذا الكتاب، لكن التفسير يحتاج إلى القلم والبحث. النور نكتب لها يعني نستمر في النقاش. इमाम शाफ़िई, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसी हस्तियां इसी माहौल से निकली हैं। इस आयत की तफसीर में उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन इमाम गजाली ने इसे यूं वाज़ेह किया है। जी हाँ, अलमीज़ान में भी तो सबका इत्तिफाक। आज जब हम कबीला कुरैश की तारीख का जायजा लेते हैं तो हमें कई सबक मिलते हैं। पहला सबक ये है कि नस्बी शरफ तब तक कुछ नहीं जब तक इसके साथ ईमान ना हो। कुरैश को नसब का गुरूर था, लेकिन जब तक उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया उनकी ताकत इनके काम न आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को माफ करके साबित किया कि इस्लाम ताकत का दीन नहीं, रहमत का दीन। दूसरा सबक यह है कि मुखालफत हक को कभी खत्म नहीं कर सकती। कुरैश की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस्लाम फैल गया। तीसरा और सबसे बड़ा सबक माफी और दरगुजर का है। फतह मक्का का मौका था, इंतकाम का नहीं। जो आज जालिम है
कल आदिल बन सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि दिल में सच्चाई का जज्बा पैदा हो। आज हम मुसलमान हैं तो उसमें कुरैश का भी हिस्सा है, क्योंकि उसी मिट्टी से इस्लाम की शाखें फूटी। अपने अखलाक को बेहतर करें, अपनी तिजारत को ईमानदारी से करें। हमें चाहिए कि हम इस तारीख को सिर्फ याद नहीं रखें, बल्कि इससे सबक लें। मज़ीद ऐसी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और अहम मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।